So what is gross profit? Your answer will be sales minus the material cost and manufacturing expenses. What I get in my hand, that is known as gross profit. Remember, material cost and the manufacturing expenses put together is also known as COGS, cost of goods sold. So what is cost of goods sold? Cost of goods sold is total of material cost and the manufacturing expenses. In other words, what we are saying, sales minus COGS is equal to gross profit. So whether I say sales minus COGS or I say sales minus material cost and the manufacturing expenses, both mean the same thing. Now from the figure of gross profit, what do? I will minus my selling, general and administrative expenses. Now this is also known as SG&A. शॉर्ट में इसको शॉर्ट में बोलते हैं SG&A, selling, general and administrative expenses. So the gross profit minus SG&A, what I get in my hand is known as EBITDA. EBITDA is earning before interest, tax, depreciation and amortization. That is EBITDA. EBITDA is also known as cash operating profit. Cash operating profit. And why it is known as cash operating profit? And answer of course is very simple. In this example that we are discussing, how much I have got by way of sales? 3,000 rupees. So I have got 3,000 in my hand, and out of that 3,000, 1,400 is gone out because of the material cost, 500 is gone out because of the manufacturing expenses, and 250 is gone out because of selling, general and administrative expenses. So what is remaining in my hand is 850. So what is cash which is remaining in my hand is 850. So this 850 is known as cash operating profit. And remember why it is known as cash operating profit. It is known as cash operating profit because so much of the cash I am getting in my hand from my operations, and that is why it is known as cash operating profit, and that is EBITDA. Will somebody like to tell me why EBITDA is important for any business? Anyone? पूरी दुनिया में जितने भी CEOs हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, all of them are always worried about one number of their business, and that is EBITDA. Will somebody like to tell me as to why EBITDA is so important? Anyone? That's what we are having a profit in our hand. Okay. Okay. Yeah, this gives us the how much cash we have and how much money we have after the end of the year. At end of the year. Okay. Good. Very good. Anyone else? Actually, sir, it tells us operational efficiency. Very good. So please remember, EBITDA, that is cash operating profit, is the most important number for any business. And why it is the most important number? Because आपका बिजनेस कब चलेगा और कब तक चलेगा? आपका बिजनेस जब चलेगा जब आपके बिजनेस में से कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. अगर आपके बिजनेस में से कैश ऑपरेटिंग जनरेट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो आपके बिजनेस का फ्यूचर लंबा नहीं है. एंड दैट इज द रीजन, रिमेंबर, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBITDA, is the concern for all the managing directors, chief executive officers, board of directors. They only want to know what is the EBITDA. कि उनको मालूम है कि अगर EBITDA मजबूत है तो बाकी सारे खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन EBITDA ही नहीं है, अगर बिजनेस में से कैश ही जनरेट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो वो बिजनेस का फ्यूचर ज्यादा लंबा नहीं है. एंड दैट इज द रीजन फ्रेंड्स व्हाई पीपल फोकस ऑन EBITDA. अब EBITDA में से आप क्या करोगे? EBITDA में से व्हेन यू विल माइनस द डेप्रिसिएशन, जो हमने समझ के लिया, उसमें से आप माइनस करोगे एमोर्टाइजेशन, वो भी हमने समझ के लिया.
अब जब आप एबिडा में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, एमोर्टाइजेशन माइनस करोगे, व्हाट रिमेन्स इन योर हैंड इज नॉन एज EBIT, earning before interest and tax. It is also known as operating profit. Now what you do? From the EBIT, what do you do? From the EBIT, you will minus the interest, that is the finance cost. So please remember, we saw in previous sheet finance cost. So you call it finance cost or you call it interest cost, both mean the same thing. So there is no difference, both mean the same thing, right? So from the EBITDA minus the depreciation and amortization, what you get is your EBIT, which is also known as operating profit. And operating profit में से you minus the finance cost, that is also known as interest cost. What is left in your hand is known as EBT, earning before tax. And now it from the figure of earning before tax, you will deduct the income tax of the company. यानी कि वो साल में इनकम टैक्स की जो कंपनी की लायबिलिटी है वो आप माइनस करेंगे टैक्सेस करके. अब आपके जो हाथ में बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द फिगर ऑफ EBT, व्हाट इज लेफ्ट इन योर हैंड is known as EAT, earning after tax. EAT, remember EAT का क्या मतलब है? EAT का मतलब है eat, और eat का क्या मतलब है? Eat का मतलब यह है कि only if your eat figure is positive, then you can eat in your business. Otherwise you cannot eat in your business. So if you want to eat, your business का eat figure जो है वो positive होना ही होना चाहिए. तो आप उसको ईट बोल सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं, आप उसको नेट इनकम बोलते हैं, आप उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और आप उसको बॉटम लाइन भी कहते हैं. सबका मतलब एक ही है. सो यू कॉल इट नेट इनकम, यू कॉल इट नेट प्रॉफिट, यू कॉल इट अर्निंग आफ्टर टैक्स, यू कॉल इट बॉटम लाइन, दे ऑल मीन दी सेम थिंग. अब फ्रेंड्स याद रखिए, अब जब एक कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को. सो आपने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी 150 करोड़ की है. अब आपने क्या किया, 50 करोड़ का उसमें से डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिया. आपके हाथ में क्या बचा, 100 करोड़. दिस 100 करोड़ फ्रेंड्स इज नॉन एज रिटेन्ड अर्निंग, और इट इज नॉन एज रिटेन्ड प्रॉफिट. क्या मतलब है, सिंपल सा, रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है, वो अर्निंग जो आपने बिजनेस में रिटेन कर ली. रिटेन्ड प्रॉफिट का क्या मतलब है, वो प्रॉफिट जो आपने बिजनेस में रिटेन कर लिया. यानी कि आपने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 50 करोड़ का प्रॉफिट आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड करके पे कर दिया, 100 करोड़ का प्रॉफिट आपने बिजनेस में वापस रख लिया, रिटेन कर लिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज रिटेन्ड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग. नाउ देन यू हैव समथिंग व्हिच इज नॉन एज कैश प्रॉफिट और इंटरनल अक्रूवल. इंटरनल अक्रूवल और कैश प्रॉफिट का क्या मतलब है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया वो आपका प्रॉफिट हो गया, और ये जो डेप्रीसिएशन की जो कॉस्ट है और एमोर्टाइजेशन की जो कॉस्ट है, ध्यान से सुनिए, ये डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन आर नॉन कैश एक्सपेंसेस. दीज आर नॉन कैश एक्सपेंसेस. और नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है कि खर्चे तो हैं लेकिन पैसा बाहर नहीं जाता है. आर यू विद मी एवरीबॉडी? सो इजंट इट? सो आपने डेप्रीसिएशन की जो कॉस्ट है आपकी, ये केस में 100 करोड़ की, 300 करोड़ की, वो 300 करोड़ किसी के पास में जाता नहीं है. तो जाता नहीं तो पैसा कहाँ रहता है, बिजनेस में ही रहता है. यानी ये वो 300 करोड़ का कैश भी बिजनेस के पास में है. तो टोटल कैश कितना बिजनेस के पास में है, 300 करोड़ का ये जो डेप्रिसिएशन है, 100 करोड़ का जो एमोर्टाइजेशन है, 400 करोड़, एंड प्लस ये जो EAT है 150 करोड़ का. तो कुल मिला के बचा कितना हो, टोटल कितना हुआ, 550 करोड़. सो दिस 550 करोड़ इज नॉन एज कैश प्रॉफिट, or it is also known as. But I have a question. Please. But that's the dividend we already have given to our shareholders. So I think we have only that 100 crores. No, no. 300 plus 100 plus 100 only. This is my understanding. No, your understanding absolutely correct. Your understanding absolutely correct. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो टोटल इंटरनल एक्रूवल्स हैं वो 550 हैं, और 550 में से 50 का डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी के पास में जो इंटरनल अक्रूवल्स बचे, दैट इज 500 करोड़. दैट इज 500 करोड़. सो यू कैन टेक इट दिस वे एंड यू कैन टेक इट द अदर वे ऑल्सो. दैट मीन्स यू टेक द रिटेन्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स विच इज 100 करोड़ प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन विच इज 400 crore. So then you can say retained accruals
आर 500 करोड़. सो यू कैन टेक इट आइदर वे. अंडरस्टैंडिंग अगर आपका क्लियर है तो आप दोनों में से किसी भी तरफ से ले लीजिए. दैट इज परफेक्टली ओके. आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू. ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स. नाउ अब देखिए, ये बढ़िया है कि आपको यू नो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड इट इज गुड. यू नो व्हाट इज एबिडा. इट इज गुड यू नो व्हाट इज EBIT. इट इज गुड यू नो व्हाट इज EAT. इट इज गुड यू नो व्हाट इज EBT. बट प्लीज रिमेंबर, a knowledge that cannot be put to use is of no use. Knowledge that cannot be put to use is of no use. तो खाली ये मालूम कर लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, खाली ये मालूम कर लिया कि एबिडा क्या है, खाली ये मालूम कर लिया कि EBIT क्या है, खाली ये मालूम कर लिया कि EBT क्या है, खाली ये मालूम कर लिया कि EAT क्या है, उसको खाली मालूम करके कोई मतलब नहीं है. यू शुड बी एबल टू यूज दिस नॉलेज टू फाइंड आउट कि आपका कोई वेंडर है वो कैसा कर रहा है, उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है. ये नंबर के बेसिस पे यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट. एंड दैट इज व्हाट वी विल डू. वी विल डू अ स्मॉल केस स्टडी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू नंबर्स ऑफ 3 कंपनीज. एंड बिफोर दैट लेट मी आस्क यू a small question. And before that, please remember and pay attention, all of you. ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो एबिडा है, ये जो EBIT है, ये जो EBT है, ये जो EAT है, ये नंबर नहीं है. ये नंबर नहीं है. ये आपके करियर के ग्रोथ का स्प्रिंग बोर्ड है. ये आपके करियर के ग्रोथ का रोड मैप है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स, वो CEO हों, COO हों, CMO हों, प्लांट हेड हों, किसी भी पोजीशन में हों, उनकी सीक्रेट क्या है मालूम है आपको? उनकी सीक्रेट ये है कि जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, व्हाट ड्राइव्स देम, उनको ड्राइव करता है कि मुझे मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है. उनको ड्राइव करता है मुझे मेरी कंपनी का एबिडा बढ़ाना है. प्लीज रिमेंबर, मुझे मेरी कंपनी में काम नहीं करना है. खाली काम करके होता नहीं है. मुझे रिजल्ट से मतलब रखना है. तो मैं क्या काम कर रहा हूं, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि क्या मेरे एफर्ट से मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या मेरे एफर्ट से मेरी कंपनी की एबिडा बढ़ रही है, क्या मेरे एफर्ट से मेरी कंपनी की EBIT बढ़ रही है, क्या मेरे एफर्ट से मेरी कंपनी की EBT बढ़ रही है, क्या मेरे एफर्ट से मेरे कंपनी की नेट इनकम बढ़ रही है. नाउ प्लीज रिमेंबर, anyone who can see that because of his efforts company's EBITDA is improving, gross profit is improving, EAT is improving, that person will have a vertical growth in his career. He will have a vertical growth in his career. So please remember, all these numbers, you have to not look at them merely as a number. You have to look at them as your career driver. कि नहीं यार, मुझे काम तो करना है, ये बात पक्की है, लेकिन मुझे काम के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मेरे काम का मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और मेरे काम का मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होना ही होना चाहिए. और जो आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि पूरी दुनिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, बहुत जगह पैसा होता था, बहुत जगह पे. अमेरिका गया, ब्राज़ील गया, मैक्सिको गया, कनाडा गया, कोस्टारिका गया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गया, हैमिल्टन गया, दोफास्को गया, दुनिया भर में प्रोग्राम किए. तो कई बार लोग आके बोलते थे, सर मेहनत तो बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, लेकिन करियर में ग्रोथ नहीं है. तो मैं उनसे पूछता कि करियर में ग्रोथ नहीं है, प्लीज़ मुझे बताओ कि आप जो एफर्ट्स ले रहे हो आपकी कंपनी में, उस एफर्ट्स की वजह से कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ असर है क्या? बोले नहीं मालूम. एबिडा पे कुछ असर है क्या? बोले नहीं मालूम. EBIT पे कुछ असर है क्या? बोले नहीं मालूम. EBT पे है क्या? नहीं मालूम. तो I said, okay, so if whatever efforts that you are putting in the company and you do not know as to what is the impact those efforts have on the profitability of the company, then your efforts have got no meaning. So you have to ensure that whatever efforts that you take, it must reflect in the P&L of the company. And if you are able to make your efforts reflect in the P&L of the company,
the growth will automatically happen in your life, friends. So अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये सीखना है कि अब हम ये नंबर का इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो ये नंबर का इस्तेमाल करने के लिए अब हम थोड़े ग्रुप भी फॉर्म करेंगे, लेकिन ग्रुप फॉर्म करने से पहले थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं. और वो डिस्कशन ये है कि एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि एवरीबडी, top line of a company is growing. Now you know what is top line, sales. So top line of a company is growing at the rate of 40%, and bottom line is growing at the rate of 30%. Good sign or bad sign, everybody? Good sign. Good sign. Okay, very good, very good. And top line is growing at the rate of 40%. Huh? This is not a good sign. Oh, this is not a good sign. Very good. Very good. I am really glad. I am really glad. So let us take another situation. Top line is growing at the rate of 30% and bottom line is growing at the rate of 40%. Good sign or bad sign? It is comparatively better. It is comparatively better, and I am so happy with your answer. Please remember, पूरी दुनिया में this is how P&L is used for the purpose of decision making. तो देखो आपने ये दो लाइन पढ़ के आपने बता दिया कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या पहले वाले का बेटर है कि दूसरे वाले का बेटर है. दिस इज ऑल फाइनेंस. This is all finance, and I'm so glad with your answer, because remember, this is all we have to understand, and that is what we have to apply. Fantastic. So let us move forward, friends. Now what I'm going to do is, all of you, I think the groups have been formed already, and we will discuss about them. Maybe Gajanan will help us with those group, and he will give us an idea, and we will request him for the same. ये पहली शीट है, और मैं आपको आपके 3 वेंडर हैं, मतलब नोशनल हैं, हाइपोथेटिकल हैं, तो मैं आपको आपके 3 वेंडर्स के नंबर देने वाला हूं. ये पहले वेंडर का है, ये दूसरे वेंडर का है, और ये तीसरे वेंडर का है. तो मैं चाहूँगा कि आप ने अगर अपने वर्कबुक का प्रिंट आउट नहीं लिया है, तो आप एक पेन और कागज़ लेके ये जो शीट आपको टेबल दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इसको तुरंत से कॉपी कर लें. इसको तुरंत से कॉपी कर लें. आपने देख सकते हैं कि उसमें सेल्स का है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और कंपनी ए और बी और सी के फिगर हैं. इसको आप कॉपी कर लें, एंड इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 2.5 minutes.